Good afternoon, everybody, and it's time for us to talk a little bit about sustainable living and natural houses, and just a lot of the topics that might be useful for people who are thinking about it but don't know if it is suitable for them or whether or not to go ahead with it. I have to thank Ganesh right now, who is standing with my mobile phone trying to do this because and it stays there. Seeing is believing, right? So, which is why I wanted Ganesh to help us so that I am able to show to you so you understand that these things when we talk about is not something that um, people who we don't know do, or people who've left everything can do, or people who have no family or obligations can do. There is no such thing. That's what the purpose of this conversation is. So, before we even get started, uh, let me tell you a little bit about my background because it will probably help all of us to relate more. My name is Shagun, as you might have already seen on the poster that Repsi Foundation put in. I come from a corporate background. So I had a standard city bred lifestyle, did my MBA in finance and marketing, worked for 10 years with a lot of multinationals such as Fitness First, Clove Dental, Gathi Renker, a lot of these organizations that I worked with. And I was earning well. I was in the very top management. Same goals, let's buy a few houses, let's buy a few good luxury cars, let's have a chauffeur to drive you around, all of that. And ultimately, the more I traveled and started getting a little bit into meditation, I realized that what is the point of this whole cycle that we are running? No matter how much you are earning, whether you are earning 2 lakhs per month, 3 लाख 4 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20,000, अल्टीमेटली आप सोचो कि हम कर क्या रहे हैं. जितना भी आप कमा लो, you can't buy clean air, you can't buy clean water, or can you? We can't, right? Clean food is also difficult. You really have to go looking for organic food, and even then most people aren't sure कि ये सचमुच वैसा है या बस मार्केटिंग ट्रेंड है. तो ये सारी चीज़ें जब मुझे भी समझ में आने लगी और मुझे लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं. जितना हम कमाते हैं वो सारा तो हम खर्च कर देते हैं अपने EMIs में, और हम वही साइकिल दौड़ते रहते हैं. अगर हम सडनली मर जाए तो देन व्हाट हैपेंस टू आवर फैमिली, व्हाट हैपेंस टू एवरीबडी एल्स. प्लस आप देखोगे आजकल की जो लोग सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अदरवाइज बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं, उन सब में ना एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है. और वो सेटिस्फैक्शन हम में तभी आ सकता है व्हेन वी कैन बी ऑफ सर्विस. सो कैन वी बी ऑफ सर्विस टू आवरसेल्व्स, टू आवर फैमिलीज, टू आवर कम्युनिटी एंड टू द प्लैनेट इटसेल्फ? कैन वी लिव इन सच अ वे कि हम बोझ नहीं है, वी आर एक्चुअली इन एसेट. दैट मदर अर्थ ऑल्सो थिंक्स कि हाँ भाई इसके रहने से पृथ्वी को कोई फायदा है, ये पृथ्वी पे बोझ नहीं है. तो जब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं तब लगता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे. आज तक मुझसे लोग, इतने साल हो गए, मुझे 6 साल हो गई ये सब स्टार्ट किए हुए, गीली मिट्टी को स्टार्ट किए हुए, पर अभी भी लोग मुझसे कहते हैं कि यू आर सो लकी, you are living this lifestyle and you have this and you have that and you are an entrepreneur now or you are a social worker now, you are so lucky. हम सब तो फंसे हुए हैं. I want to make this very clear. It's got nothing to do with luck. What it's got to do with is determination and self-confidence. Do you have enough faith and belief in yourself and in your idea, and do you have the guts to take the step and go behind what your heart is telling you is right? That's all that it takes. Now, let's come to Gili Mitti itself. Gili Mitti Farms and Foundation. Why did I start this? I will admit honestly, I didn't have any grand notions initially. I just knew that I have to make a change, and I knew that I have to live a simple life connected to the earth. But when I started thinking about it, a home became a very important need for me. That, if I have to start living this lifestyle, what is the first thing that I need to focus on? I need a place to live. I need a home. And a home is also a very critical factor when we talk about energy systems. Whether we do permaculture design, for which I'm a trained consultant and designer, whatever we do, we tend to focus first of all on where will the home be situated, how will it be designed, and so on and so forth. Why is that? That's because
bear this in mind, that your home is the place where maximum amount of energy is being consumed. Maximum amount of energy. Whether that is food energy, whether that is your electricity, and the maximum amount of waste is also generated from your home. So if you take care of this one factor, imagine the kind of impact that you make. Which is why I wanted to focus today more, not so much on the land or farming or growing food. I wanted to first of all focus on our homes. And again, what we will learn today is that this conversation is not for people who have a farmland and for people who can build their own big bungalow and they can grow their own food and so on and so forth. That's not the perspective at all. Whether you live in a multi-storied apartment in a flat, whether you live in a row house in the city, whether you actually have a farmhouse of your own, or you just have a piece of land, you will realize that what we are going to talk about today is relevant in each of these cases. Okay, so far so good. I don't know how many people are live, but probably most of you will be watching it later when we post the video. So where I'm sitting right now, this is called the Earthbag Golghar, and this was the first structure that I built when I bought this land. I will first talk about this structure, then I will go back and talk about what Gili Mitti is all about and how we can help you as well for realizing your dreams and making your homes a lot more sustainable and healthier for you and your family, especially for children. So we will talk about that, and then the treat is we will also walk around and take you to see some of the other structures, so that you get a good visual of what is possible and how easily. Okay, so I think okay, so that was a quick trip round. Don't worry, we are going to go to some of the spots in a little more detail, and I had gone to get myself a cup of tea. Okay, so let's talk about first of all this structure itself. This technique is a technique called Earthbag, and it was originally developed particularly for housing in the 1970s by a person called Nader Khalili. This was in California in USA. And this technique was developed for NASA actually, because NASA wanted a building technique that could be used to build shelters for astronauts on the planet Moon. That high tech, and with whatever materials are available over there. So obviously you can't carry your bricks, cement, mud, clay, whatever it is to the planet Moon in your shuttle and then build. So that's what this technique was built for. Today it is extremely popular all over the world, and including in India. It's getting very, very popular because there are so many advantages to it. The most important advantage, or rather let me just skip back a little bit and just even talk about why even a natural building. Why not simply build houses like it is being built in the last 70-80 years, I would say, with your cement, RCC. Why even natural houses? What does that even mean? So first of all, natural housing, and this is my own definition, I'm creating it right now as we talk. Natural housing is when you build your house with materials that are available from your land itself where you're building, or nearby, anywhere nearby, within a couple of kilometers radius, or if you're a city, then within that city, just as close as possible. And the second important thing is that obviously the material should be renewable. It should be that the rate at which you are using it, it cannot be replenished at the same rate. So that is what you have to be careful about. Now why I'm stressing on this point is because, it's very funny. There are a lot of people, natural building has become very trendy as well. So those who are multi-millionaires and billionaires are also, they also want a house like this. And you could, technically, you could import all, sitting in India for example,
You could import your marble from Italy. You could import your wood from Switzerland. So as per the textbook definition, a house that you build for a couple of crores, let's say, is a natural building because it is made out of natural materials, but it defeats the very purpose. And the purpose is that that we want to live in harmony with the nature. So let's talk about some of the benefits of living in a house built with stones, mud, lime, wood, bamboo, clay, whatever materials are easily available to you. So let's understand that. I will first and foremost talk about what most people understand, and that is energy efficiency. When you build a house like this with mud, it has a huge amount of thermal mass, and you can also play with insulation. The material itself gives you this. So that means when it is extremely hot outside in peak summers, like let's say in a place like Delhi, or in fact most of the places today, temperatures are ranging to 46 degrees Celsius, 47 degrees Celsius. We're probably going to touch 50 as well. It's literally a desert. Now imagine in temperatures like this, if you've got a house where you don't need air conditioning, because the house design and the material itself ensures that when it is blazing hot outside, your home is going to remain comfortably cool. And similarly, in the winters or at night time, when it's really cool and cold, the house is going to remain nice and cozy and warm inside. Isn't that beautiful? At the very initial level itself, imagine the amount of energy that you're going to save. We talk about, a lot of people have talked about it over here, about renewable energy systems and electricity and solar electricity and hydel power and wind energy and so much more that we're developing. But let's go even one more step back, I'm saying. That of course you do all of that for your existing houses. But you have the opportunity to first of all make your house itself so efficient, energy efficient, that you're barely going to consume any external energy. And then of course the external energy itself that you're consuming, you think about what are more sustainable and renewable ways of using that energy, right? Make sense? Now a quick question might be कि अच्छा हमें तो अभी घर नहीं बनाना है, हमारे पास तो ऑलरेडी घर है, हम तो ऑलरेडी फ्लैट में रह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने घर में, और ये चीज़ें हम सिखाते हैं, आप अगर अपने घर में ही अभी आपको बहुत सारे प्लास्टर्स डेवलप हो गए हैं जो आपको बैग में दुकान में भी मिलते हैं. हम आपको तो जिनको इंटरेस्ट है वो हमसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम इन सबका जवाब देंगे और आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देंगे. आप प्लास्टर खरीद सकते हैं मिट्टी का, आप प्लास्टर खरीद सकते हैं चूने का, और ये सारे मटेरियल्स का अगर आप सिर्फ ये प्लास्टरिंग भी अपने एग्जिस्टिंग घर में करते हैं और ऊपर रूफ के हम आपको लो कॉस्ट इंसुलेशन के तरीके बताएंगे, अगर आप इतना ही करते हैं ना, यू विल बी शॉक्ड with a temperature difference inside your home ranging between 5 to 10 degrees Celsius. It is unbelievable, it is mind-boggling and takes nothing. So, with that, let me go 2 steps back. About गीली मिट्टी. I'm sure you can hear my cat in the background, है ना? तो ये बेचारी किटन अभी 4-5 दिन पहले पता नहीं कहाँ से घूमते हुए आई गाँव में, इसके पैर में चोट लगा हुआ था और ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी. तो अब ये भाई साहब या बहन जी, मुझे नहीं पता क्या है, वो अभी यहीं की हो गई है और अभी ये कमरे में घूम रही है, इधर उधर मक्खियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही हैं. तो बीच में दिखेगी तो आपको भी इंट्रोड्यूस करा दूंगी मैं. हमने इसका नाम रखा है मिस्टर ग्रे. सो एनीवेज, मिस्टर ग्रे से वापस हम आते हैं नेचुरल बिल्डिंग में. तो नेचुरल बिल्डिंग में तो जब मैंने सोचा कि मुझे ये लाइफस्टाइल जीना है और मुझे अपने लिए अपने हाथ से, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम नहीं देना चाहती, मैं अपने हाथ से अपना घर मिट्टी का बनाना चाहती हूँ. तो मैं उस ज़माने में, अब हम बात करें 6-7 साल पहले की, मैं ढूंढ रही थी कि क्या ऐसी, जैसे इंटरनेट में मैंने बहुत, गूगल में बहुत सर्च किया, तो आप अगर गूगल में नेचुरल बिल्डिंग सर्च करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन इज कि एंडलेस चीज़ें खुल जाएंगी. आपको इतने सारे टेक्निक्स हैं आज के डेट में नेचुरल बिल्डिंग, और ये ट्रेंड कर रहा है. इट इज़ वेरी ट्रेंडी टुडे, इट इज़ वेरी इन. तो देर इज़ अर्थ बैग, देर इज़ कॉब, देर इज़ रैम्ड अर्थ, देर इज़ वॉटल एंड डॉब, देर इज़ बैम्बू, देर इज़ स्ट्रॉ बेल, देर इज़ अर्थ शेप. There are so many techniques. So I was confused. I was like कि अच्छा यार इतने सारे, and मैं ये सीखूं कहाँ से? तो अब मुझे, गणेश आपका कोई फोन आ रहा है, तो मुझे ये है जहाँ पे कोई मुझे ठीक से कंसल्ट कर सके
कि भाई ये सारी जो मैं इतना सारा जार्गन पढ़ रही हूँ ये क्या है। वो मिस्टर ग्रे आ गए यहाँ पे, बाय द वे, अगर दिख रहा है तो ये है मिस्टर ग्रे। हेलो मिस्टर ग्रे, हेलो, आपका म्याऊ म्याऊ खत्म हो गया, हम कंटिन्यू करें? ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहाँ पे कि मैं जा करके मेरा डिजायर ये था कि मैं ये 5-6 टेक्निक्स को अपनी आंखों से देख सकूं, सिर्फ बुक में और इंटरनेट में नहीं कि वहां की फोटोज दिखे मुझे। मैं इनको देखना चाहती थी और देखने के साथ साथ मैं इनमें रहना भी चाहती थी कि भाई एक बार इनमें रह के भी तो देखो कि ये कितने प्रैक्टिकल है, ये कितने कंफर्टेबल होंगे, या पता नहीं मिट्टी का मकान कैसा होगा। हम कैसी कैसी चीजें सोचते हैं ना कि अरे मिट्टी के मकान तो गरीबों के लिए होता है। भाई सरकार भी हमें बोलती है कि मिट्टी के मकान कच्चे मकान है, और डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है पक्का मकान, सीमेंट का मकान, अनफॉर्चुनेटली। बट आई विल नॉट गेट स्टार्टेड ऑन दैट टॉपिक, वी विल कम बैक टू वेयर वी वर। So I didn't find any such place where I could do this. So I started on a journey of going to different places in India and abroad, mostly abroad, and learning all of these different techniques and also finding out about them. And by the way, this is Kuvar Singh. So you'll see how animal friendly we are. Kuvar Singh, in case you don't know, is the CEO of Gili Mitti Foundation. Gili Mitti Farms, I'm sorry, not Gili Mitti Foundation. तो अगर आप मेरे वेबसाइट में भी जाएंगे, जो अभी मत जाना क्योंकि हम उसको रीडू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे सीईओ लिस्टेड है मिस्टर कुंवर सिंह। मिस्टर कुंवर सिंह भी ऐसे ही मिस्टर ग्रे की तरह 5 साल पहले, मेरे ख्याल से गणेश 5 साल पहले यहाँ पे आए दौड़ते हुए, पता नहीं कहाँ से आए, और फिर उन्होंने कहा जी हम तो यहीं पे रहेंगे, ये हमारी जगह है, आप लोग हमारी प्रजा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ के हो गए। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे सारे जितने जीव जंतु हैं वो सब ऐसे ही कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। सो गोइंग बैक टू दिस, तो मुझे ऐसी जगह मिली नहीं, तो मैंने सीखा, और जितना मैं सीखते गई मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया। एंड वो था ना, इट वॉज लाइक अ यूरेका मोमेंट। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सब कोई क्यों नहीं ये कर रहे हैं? दुनिया में हर इंसान क्यों नहीं ये वाले मकान बना करके रह रहा है? कोई भी क्यों कभी भी सीमेंट के मकान बना रहा है? इट मेक्स नो सेंस। नाउ आई एम गोइंग टू बी वेरी sarcastic, okay, because I'm sarcastic and fun loving. Nature, energy, doing good for the planet, being kind does not mean you have to be a boring person. You can enjoy life to the fullest and be a fun loving person. So I like saying कि ये देखो सीमेंट के मकान कितने अच्छे होते हैं। गर्मी में जब बाहर आपको गर्मी होती है तो अंदर ये और ज्यादा गर्मी हो जाता है। सर्दी में जब बाहर सर्दी होती है तो ये अंदर से और ज्यादा ठंड हो जाता है कि आपको खूब सारे हीटर की जरूरत पड़ेगी। और बारिश में तो माशाअल्लाह, बारिश में तो ऐसा होता है कि अंदर आपको पूरी सीलन भी आ जाती है, ताकि आपको पूरी फील आते रहे कि भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, और सीपेज तो घर में आना कंपलसरी है। तो एक मटेरियल जिसमें आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू अस, एंड बाय द वे दिस मटेरियल इज ओनली अबाउट 100 years old, राइट, नॉट मोर देन दैट, एंड ह्यूमन बींग्स हैव बीन बिल्डिंग फॉर ऑलमोस्ट 9000 years in some way or the other. So now imagine, in 100 years this brilliant material has brainwashed us so much, and the lobbies have brainwashed us so much that today we question ourselves. Today we question कि अच्छा सीमेंट के बिना आप घर कैसे बनाओगे? अच्छा बारिश की जगह में घर बन जाएगा? अच्छा ये 2-3 मंजिल का घर बन जाएगा क्या? हमारे जितने फोर्ट्स हैं और दुनिया में आप जितने वंडर्स देखते हो, क्या वो सब सीमेंट के बने हैं? 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल पुराने मकान, फोर्ट्स, किले, पैलेसेस, दे आर ऑल सर्वाइविंग। सीमेंट हाउस नहीं सर्वाइव करता। सीमेंट हाउस आप स्पेशली अगर आप गांव, छोटे शहरों या कहीं पे बड़े शहरों में भी आप देखो, आपको कितने साल, 30, 40, 50 साल में तो बैंड बजनी शुरू हो जाती है। बट collectively we have been brainwashed into thinking that that is normal and this is abnormal. This is the normal. Please go back to it. So I learned, and I came back over here and I said, okay, let me start off by making a cottage where I can live temporarily before I make my big nice house, again of mud only, later. And so that even if anybody else is staying, at least we have, जो कहते हैं ना घर के ऊपर एक छत तो हो, वो हो। तो मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, और हमने ये कॉटेज सबसे पहले बनाया। इसके पास अपना एक अटैच किचन भी है और अपने टॉयलेट्स भी हैं, बाथरूम्स भी हैं। तो हमने ये बनाया, और ये बनाया तो डिमांड इतनी ज़्यादा कि लोग यहाँ से बस नहीं, दुनिया भर से आने लगे, गांव के आने लगे, आसपास के 10-15 गांव से लोग यहाँ पे आने लगे देखने के लिए कि भैया कर क्या रहे हैं।
और ये जो पूरा घर बना है, जो अर्थ बैग टेक्निक है, वो आपको पता है किस चीज से बनता है? अब हम इसके लिए नए बैग्स नहीं खरीदते हैं, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट कि आप अर्थ बैग का घर बना रहे हैं तो आप नए नए पॉलीप्रोपाइलिन यानी कि प्लास्टिक के ट्यूब्स खरीदिए और बैग्स खरीदिए और घर बनाइए. डिफीट्स द पर्पस. देन यू आर फ्यूलिंग इवन मोर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विच वी शुड बी यूजिंग इन द फर्स्ट प्लेस. सो व्हाट आई डू इज आई कलेक्ट ओल्ड सीमेंट बैग्स डिस्कार्डेड, कूड़े वाले से या किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया से, और उन बैग्स में मैं वही की फाउंडेशन की जो मिट्टी हमने खोदी वही मिट्टी मैं उन बैग्स में भरती हूँ और उन बैग्स में भर करके हम ये मकान बना देते हैं. और ये जो अर्थ बैग टेक्निक से बना हुआ मकान है, और आप जब पढ़ोगे, गूगल करो आप, यू कैन रीड अबाउट इट, दे आर एक्सट्रीमली अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, दे आर फ्लैश फ्लड प्रूफ एंड दे आर इवन बुलेट प्रूफ. What can be better? And of course all the energy efficiency bits that I said are there. Secondly, think of the beauty. Your house is one of a kind. They are stunning and they will change you as a person. एक बार आप किसी वर्कशॉप में भी चले गए ना, जैसे हमारे यहाँ किसी के यहाँ मिट्टी से आपने काम करना शुरू किया, चाहे आपके पास जमीन हो चाहे ना हो, चाहे आप घर बनाने की हालत में हो चाहे ना हो, बाय द वे आप अपने एग्जिस्टिंग घर के छत में भी बना सकते हैं. इट डजेंट मैटर. आप एज एन इंसान बदल जाएगी. एंड देन इट्स नॉट जस्ट द हाउस, राइट? फिर हाउस में सारे सिस्टम्स का भी आप ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम रखते हैं कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं या ग्राउंड वाटर रिचार्ज उससे हम कर रहे हैं. अगर हमारे पास उतना पानी नहीं चाहिए या उतना स्टोरेज नहीं है तो जितनी हमें बिजली चाहिए वो बिजली कहाँ से जनरेट हो रही है, दैट इज टेकन केयर ऑफ. जितना हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी हमने सिग्रीगेट किया हुआ है ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर में. ग्रे वाटर आपको हुआ एनीथिंग विच डज नॉट हैव पूप इन इट, दैट इज ग्रे वाटर. तो हाथ धोने का पानी, नहाने का पानी, वो ग्रे वाटर पानी अलग जाता है, जिसको आप बिल्कुल सिंपल सैंड फिल्टर्स या अदर ग्रेवल बेस्ड फिल्टर से फिल्टर करके डायरेक्ट पौधों में पानी डालने के लिए चला जाता है. वो ब्लैक वाटर सिस्टम्स के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं, जैसे कि बायोडाइजेस्टर सिस्टम, एक है हमारा लीचेड सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं विच वी डेवलप्ड कि वट एवर इज सुटेबल फॉर यू, यू कैन यूज दैट. बट यू डोंट हैव टू बी इन अ सेंट्रलाइज सिस्टम कि भाई जब तक कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं हो तब तक हम अपना वेस्ट डिस्पोजल कर ही नहीं सकते. यू डोंट नीड टू डू दैट एट ऑल एंड दैट डजंट मेक सेंस. क्योंकि फिर आप सोचो कि पूरे बड़े बड़े शहरों का पूरा वेस्ट कलेक्ट होता है और सीधे समुंदर में जाता है. What is important for sustainability is decentralization, not centralization. So everything has to be decentralized, whether that is food, whether that is waste management, everything. And the more you decentralize the systems, the more the planet and everything else will be sustainable and handleable. The more you centralize the systems कि भाई गवर्नमेंट सबका कूड़ा जमा करे, गवर्नमेंट सबका टॉयलेट वाटर जनरेट करे, जमा करे, फिर उसको ले जाए, गवर्नमेंट सबका वो करे, उतना वो होता है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें. एज आई सेड, हमारा पर्पस यहाँ पे गीली मिट्टी का ये है कि वी वांटेड टू मेक इट इनटू एन एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कम रिसर्च सेंटर, जहाँ पे एज आई सेड नो मैटर विच सिचुएशन एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउस एंड वेयर यू लिव एंड व्हाट लाइफस्टाइल यू हैव, you can come over here and you can learn about all of these energy based systems that will be appropriate for your particular environment. फ्लैट में, रो हाउस में, किराए के मकान में, अपने मकान में, बंगलों में, या आप नया घर ही बना रहे हैं तब तो भाई प्लीज मिट्टी का मकान बनाओ, नथिंग लाइक इट. बट नो मैटर विच सिचुएशन यू आर इन, हाउ टू मेक योर लाइफ स्टाइल a lot more sustainable and ecological is something that you can learn and see live. All of these systems you can see live when you come to Gili Mitti. That was my purpose. And secondly, of course, I was very troubled by seeing that, you know, in all the villages today and everywhere, how all the beautiful traditional houses are being gutted and these disgusting cement monstrosities and houses, all of them look like boxes which are identical, are getting made. One of the core reasons for it is, and I'm going to say it out in the open, are schemes of the government such as, let's say, Indira Vikas Yojana, I think, Indira Awas Yojana. अब इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों को बोलते हैं कि भाई मैं आपको पैसे देने वाला हूँ अगर आप अपना पुराना घर, Your voice is too low. Okay, I'm going to try speaking louder. Hopefully it's going to be that way. So अगर आप लोगों को पैसे देना शुरू करते हैं कि भाई हम आपको टैक्स पेयर मनी देंगे अगर आप अपना मिट्टी का मकान तोड़ करके सीमेंट का मकान बनाएंगे, तो ऑनेस्टली हम सब इंसान हैं और इंसान की फितरत यही है, नो पॉइंट फाइटिंग इट. तो भाई
फ्री में पैसे मिल रहे हैं घर बनाने के लिए, तो आप नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे, सारे गांव वाले बनाएंगे। तो यही हो रहा है हमारे पूरे देश में। तो अपने बहुत खूबसूरत इनके मिट्टी के मकान ट्रेडिशनल विजडम से बने हुए हैं, जो आपको सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इस बारे में। आई मीन इट इज सो फनी। जब मैं इनके घर में जाती हूँ ना, गाँव वाले, जब मैं नई नई आई थी तो मैं इनके घर में गई, मैंने बोला भैया आपका इतना सुंदर मिट्टी का मकान था, आप ये मकान में क्यों रह रहे हो? तो लोग पता है क्या बोलते हैं, मैं आपको रीजंस देती हूँ। नंबर 1, इट्स अबाउट सोशल स्टैंडिंग। अब आपने सबके दिमाग में क्या डाल दिया कि भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके पास सीमेंट का मकान हो। अगर आपके पास मिट्टी का मकान है तो मतलब आप बैकवर्ड है, आप अनडेवलप्ड है, आप पिछड़ गए। और वो जो होता है ना कीपिंग अप विथ योर नेबर्स, कीपिंग अप विथ योर जोनेसिस जो हम बोलते हैं, तो वो है कि भाई मेरे बगल वाले ने सीमेंट का मकान बना दिया और सरकार उसकी मदद कर रही है और मैं अभी भी मिट्टी वाले मकान में रह रहा हूँ। लानत है मुझ पे। माँ बाप का सपना है ये कि बेटा मेरे मरने से पहले मेरे घर पे एक पक्की छत डाल देना। भाई पक्की छत का मतलब भी क्या होता है? कोई पॉइंट नहीं है, पर आपने उसको एक सोशल स्टेटस बना दिया, स्टेटस सिंबल बना दिया। यहाँ पे लोग मुझे बताते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि लोग अपनी बेटी को नहीं देना चाहते अनलेस आपके पास सीमेंट का मकान है गांव में। ये कैसे हुआ? ये क्या किया हमने? डेवलपमेंट का बैरोमीटर ये बन गया। अब लोग सोते कहाँ है? घर के बाहर छत पे। क्यों? क्योंकि भाई घर के अंदर बहुत गर्मी होती है और बहुत ठंड होती है और घर सांस ही नहीं लेता है, तो घर के अंदर सो ही नहीं पाते। गांव में लोग ना रात को अंगीठी जलाते हैं। अगर वो अंगीठी जला के सो जाए अपने सीमेंट के मकान में तो सवेरे तक पूरा परिवार मर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। पर जब मिट्टी के मकान में ये रहते थे तो मिट्टी की दीवारें आपको ब्रीथ करती हैं, तो जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग भी नहीं होता था। हम आज की डेट में बात करते हैं कि भाई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन अगेन गूगल ऑल ऑफ दिस अप, यू कैन गूगल इट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. What is the sick building syndrome? So many buildings are being declared worldwide that this is a sick building, which means that if you are living in these houses, you are going to fall sick. You are going to get cancer, you are going to get Alzheimer's, you are going to get all of these diseases which are on the rise. Why? Because even after you've constructed the house and you've done your painting, और ओहो दिवाली में तो आप बार बार उस पर पुचारा भी करेंगे, fresh coat of painting करेंगे, there are these extremely poisonous gases called VOCs and so many more which your house is going to keep emitting for its entire lifetime. It is never going to stop. तो जितना आप अपने घर के अंदर रहिए उतना आप वो पॉइजन को इनहेल कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, हम दिल्ली जैसे जगह में बात करते हैं कि भाई बाहर बहुत पोल्यूशन है, बाहर का अगर आप हवा लीजिएगा तो आप मरिएगा, और घर के अंदर भी अगर आप रहिएगा तो आप और आपके बच्चे मरेंगे, क्योंकि आप सिर्फ वो टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि घर तो आपने वही सीमेंट का बनाया है, वही सारे केमिकल्स डाले हैं और सारे फिर पेंट्स भी लेस्ड विद VOCs यूज किया और करते जा रहे हैं। इवन योर फर्नीचर एंड द फर्नीचर पॉलिश, everything is emitting cancerous gases that we are living in 24/7. We can't live like this, and that is the purpose why I started this. Now today what has happened is once I realized कि ये एक तो स्टेटस सिंबल का प्रॉब्लम है क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब हो गया सीमेंट का घर हमारी पॉलिसीज की वजह से, और दूसरा आई रियलाइज्ड कि ये सारे घर ना थोड़े मॉडर्न नहीं दिखते और लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा मॉडर्न दिखने वाला घर दिखे। तो मैंने रियलाइज किया कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऐसे मिट्टी के घर बनाऊंगी और बिल्कुल जो उस जमीन से निकलेगा उसी सामान से बनाऊंगी, और उन घरों को इतना सुंदर बनाऊंगी मैं कि उनको हम स्टेटस सिंबल बनाएंगे, कि कल को इनको लगे कि अच्छा ये शहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं इनको सीखने के लिए और सब इस घर में रहना चाहते हैं, तो मतलब हमें भी सीमेंट का मकान नहीं बनाना चाहिए, हमें भी मिट्टी के मकान में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल वो ट्रेंडी हो गया है। So every building that I design, or in Gili Mitti the whole team, all of us design and we build, we are very sure that we don't want to build anything substandard. I like saying that when we build for a minimum of 200 years. उसके बाद मुझे नहीं पता कितनी पुश्तें होंगी क्या होंगी, but we never build for 5 years और 10 years, वो जो कच्चा मकान वाला कॉन्सेप्ट हम मिट्टी के मकान से समझते हैं। So no. I think another popular cost price. पहले मैं थोड़ा चाय पी लूँ। नाउ प्राइस इज वेरी फनी। रोज मेरे पास ना 15-20 कम से कम फोन्स एंड ईमेल्स आते हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप हमारे लिए भी घर बना देंगे और इसमें खर्चा कितना आएगा। तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ आपका बजट क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है
कि अच्छा मिट्टी का मकान है तो मतलब क्या 50-60 हजार में बन जाएगा, 20 हजार में जाएगा? ना जी, पहली बात तो ना, क्योंकि उस क्वालिटी का मैं घर नहीं बनाती, तभी तो मिट्टी के घर बदनाम है। आप चाहते हो कि जी आप 50 हजार के घर को कंपेयर करो 20 लाख के घर को, तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हुआ ना। आप ये 20 लाख के घर को 20 लाख के घर के साथ कंपेयर कीजिए ना, तब तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहले तो इसका कोई भी पर स्क्वायर फीट रेट नहीं होता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई आपको पर स्क्वायर फीट रेट देता है तो आप प्लीज ध्यान में रखना कि वो आपको लूट रहा है, वो सही इंसान नहीं है नेचुरल बिल्डिंग के नाम पे। नेचुरल बिल्डिंग में मैं हमेशा बैकवर्ड्स काम करती हूँ। मैं कहती हूँ आप अपना बजट पहले डिसाइड करो। आपका बजट 5 लाख है, आपका बजट 50 लाख है, आपका बजट 5 करोड़ है, क्योंकि बीच में कोई पैसे यहाँ पे खाने वाला नहीं है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना बजट डिसाइड करो, जो आपका बजट है उसके हिसाब से महल बना सकते हो आप अपने बजट के हिसाब से। तो ये वैसे काम करता है, क्योंकि आप सोचो ना आपके खर्चे क्या है। मटेरियल आप जितना लोकल यूज करो उतना अच्छा है, तो मटेरियल्स का तो ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है। मेन खर्चा है मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप देखोगे हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही, वी अनफॉर्चुनेटली लिव इन अ जनरेशन ऑफ डिस्पोजेबल्स। इफ यू लुक बैक टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड बिफोर दैट अ फ्यू जनरेशंस, चाहे हमारे बर्तन हो, चाहे एक बाल्टी क्यों ना हो जो स्टील की और पीतल की होती थी, हर चीज हमारी जिंदगी में, एक टिफिन का डब्बा तक, आप कोई भी पुरानी चीज देखो वो सब भारी होती थी और वेल मेड होती थी, टाइम लगा करके, एनर्जी लगा करके, एफर्ट लगा करके, स्किल लगा करके, क्राफ्ट लगा करके बनती थी। पुश्ते पुश्ते वो काम करते थे। तो क्या होता है फिर वो पास ऑन भी तो जनरेशन टू जनरेशन होता है ना। मैं अपने बच्चों को दूंगी, मेरे बच्चे उनके बच्चों को देंगे, वो फॉरएवर चलते रहते हैं। हर सामान, सिर्फ घर नहीं। आजकल हम क्या चाहते हैं, हम चाहते चीजें तुरंत खरीदे जो सस्ती हो, भले वो 2 दिन में टूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबिलिटी, अंडरस्टैंड दैट एनी डिसीजन दैट यू टेक इन योर लाइफ, टेक इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कि ये जो चीज में मैं अपना पैसा या अपना एफर्ट या अपना एनर्जी लगाने जा रहा हूं या जा रही हूं, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट? इज इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस और इज इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? And that should decide where you put your energy and money. And that is the simplest barometer to lead a sustainable life where Mother Earth would be happy about you existing and not crying कि भाई ये मर जाए ज़्यादा अच्छा होगा। And sorry मैं ऐसी बात करती हूँ तो I don't talk formally, I can't talk formally. तो that is the most important thing. So again even with housing, अब घर तो भाई obviously वैसे ही बनाओ ना कि भाई जो अगले कई पुश्ते चले। ऐसे क्यों बनाएंगे हम कि भाई 50 साल में ही पूरा घर ढह जाए और फिर नया घर बनाना पड़े। और वही चीज़ अपने हर डिसीजन में भी आप रखिए, कुछ भी खरीदने वरीदने का आपका डिसीजन हो। तो कमिंग बैक टू कॉस्ट, तो आपका मेन कॉस्ट आई वाज सेइंग कि इन घरों में मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अनलेस आप यहाँ पे आकर के एक वर्कशॉप ना कर लें, चाहे आप 2 दिन का वर्कशॉप कीजिए, चाहे आप 2 महीने का वर्कशॉप कीजिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने सीरियस हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर अभी आप सीरियस नहीं है या अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप 2 दिन का एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप कर लीजिए, वीकेंड वर्कशॉप कर लीजिए, पर वो करना नेसेसरी है बिफोर यू इवन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ। क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट डज इट टेक, व्हाट डज इट एंटेल। अदरवाइज आप सारे ये मिथ में होते हो, अच्छा मिट्टी के मकान में इतने पैसे क्यों लगेंगे, अच्छा ये मिट्टी का मकान में इतना टाइम क्यों लगेगा, अच्छा मिट्टी के मकान, वो सारे मिथ आपके खत्म हो जाएंगे कि मिट्टी के मकान से ज़्यादा पक्का कोई मकान नहीं होता है। सीमेंट का मकान कभी मिट्टी के मकान के जैसा पक्का नहीं हो सकता है। तो पक्के मकान ये है, जनरेशन प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ, फ्लड प्रूफ मकान ये है, ना कि वो। पहले तो ये मिथ को हम हटा देते हैं और उसके रीजन मैंने आपको बता दिया, सोशल स्टेटस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। Those 2 reasons is what is completely defining what is happening in the world and in our country, especially our villages, unfortunately today. So, since we are sitting in the earthbag house, this house itself, same size. This is about, I would say, the room is 400 square feet, and then including the kitchen and the bathroom, this is about 700 square feet. So a cottage of this size, and you've seen this looks beautiful. It's ultra luxury. It looks like a hotel. It's like a 5-star hotel. I have personally, and I can build earthbag houses anywhere from, I would say, of about this size, not the same finishing, from 50,000 rupees to 12 lakh rupees. Depends on क्या आप खुद काम करने को तैयार हैं या आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, क्या आप खुद सीखने को तैयार हैं या आपको 50 लोगों को हायर करना पड़ेगा,
क्या आप, आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मिलके बनाएंगे या आपको लेबर हायर करना पड़ेगा और लेबर का कॉस्ट क्या है? उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फिनिशिंग के लिए आपके ऊपर है, भैया आप जैगवर की फिटिंग्स अपने बाथरूम में लगाना चाहते हैं या 2000 की फिटिंग लगाना चाहते हैं, आप लकड़ी अपनी लोकल कुछ आसपास सस्ती मिलती है वो लगाना चाहते हैं या आप प्राइम टीक वुड लगाना चाहते हैं। तो ये सारे डिसीजंस आपके हैं कि आप, इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ अपना बजट डिसाइड कीजिए, बाकी आप खुद कर सकते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि चिड़िया को ना किसी ने अपना घोंसला बनाना नहीं सिखाया, इसी तरह से इंसान को और हम सबको, किसी को भी ना हमें आर्किटेक्चर डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है एक सिंपल मकान बनाने के लिए। इस टाइप के गीली मिट्टी में आप जितने भी मकान देखोगे उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स architects and engineers, civil engineers are required, structural engineers are required, and they are very important. But if you want to design and build your house yourself, strictly yourself, trust me, you can. I have, and I don't have any such background. And not just one, I have built so many for so many people. I have built schools for slum children. I have built animal shelters. I'm going to be building a big hospital for animals. You can do it. And that is exactly what I purpose is, to empower you and teach you to do it. Not कि मैं contracts लेते रहूं और लोगों के लिए होटल बना. Hotels want to build this because they know that they can earn a lot of money by renting out these rooms. But that's not our focus area. Our focus area is each individual who wants to build a house themselves and live in it and take all the benefits of it and take care of the carbon footprint on planet Earth. As well as even if you've got an existing house who want to learn how to make it more eco-friendly and sustainable and energy efficient. Those are the things that we concentrate on and we teach, and we are constantly researching all the time. So I don't know if are there any questions, or I think we can just walk around and maybe see one more structure. Right, I don't know if we can see two, but I'll at least show you one more structure, and I don't think we'll talk more. But later when you see this video, if you have any questions or you would like to know more, you can leave it in the comments. I will definitely personally read all the comments and I will definitely respond to it as well. You can also go to our page of Giri Mitti Farms, and over there also you will find a lot of material on our Giri Mitti Facebook page, on our Instagram page, on our YouTube page. There's a lot of material that you will find, but feel free to write an email to us or leave it behind in comments, and we will definitely answer or at least show you the way, whatever we can. So we'll take about 10-15 minutes. I don't think I'll make this any longer, and just walk down and see one more structure, and then we'll end the talk for now. Mr. Gray, you will have to move and stop biting me. Yes, please move. Thank you. Come. Okay, so I'm going to walk a little fast, otherwise it's just going to waste a lot of time. Since we are over here, so all the camps around the village and even all the houses, सबका कूड़ा हम जमा करते हैं. तो ये इतनी सारी जो आपको बोतलें दिख रही हैं, और यहाँ का भी जो हमारा सारा प्लास्टिक वेस्ट है,
अब वी आर इन अ विलेज, यहाँ पे कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है जहाँ पे कि मैं कूड़ा दे सकूँ, बट फिर भी हम अपना सारा कूड़ा सेग्रीगेट करते हैं और हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जितना भी बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है वो तो हम सारा कंपोस्ट करते हैं, पर जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा यानी कि आपको सॉफ्ट प्लास्टिक है उसका वी मेक समथिंग कॉल्ड इको ब्रिक्स। दीज आर इको ब्रिक्स, दे आर सुपर हार्ड। इन ईच बॉटल you will be surprised by the amount of soft plastic, यानी कि बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, all of that आप कितना ठूस सकते हो। और फिर इसका again later for those who are interested I can send some pictures to you. We make furniture out of this, we make outdoor benches out of this and entire houses are made out of this. Again आप गूगल करो eco bricks आपको मिल जाएंगे। So coming to the Hobbit house, you see this is what is called a living roof. I will talk about it more when we go inside, but पूरा का पूरा जंगल है मेरे छत पे। Beautiful entrance and let's go inside. In fact, I'll turn on the light, it will be quite dark. So, when we come over here, all the way inside, यहाँ पे आ जाइए एक बार finish. What you see is, this is the staircase, जहाँ पे हमने एक mezzanine area में cave कहते हैं हमारा sleeping cave. तो यहाँ आते हैं और ऊपर सो सकते हैं, नीचे सो सकते हैं. This is a beautiful seat, very ergonomic. तो कोई कुशन की जरूरत नहीं है, इट इज सो कंफर्टेबल. लाइटिंग ये भी पूरी मिट्टी के, मेरे लैम्प मिट्टी के बने हुए हैं. यहाँ पे मैं अपना चाय का मग रख सकती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाय का मग कहाँ रहेगा? एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव मोर टेबल्स. आप देखोगे सब में इनबिल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, प्लम्बिंग सब कुछ इनबिल्ट होता है. तो आप ये मत सोचना कि अच्छा इन घरों में बिजली का क्या होगा. नो प्रॉब्लम, बेटर देन योर कन्वेंशनल सीमेंट हाउसेस. दिस इज अ फायर प्लेस, फुल्ली वर्किंग. यहाँ से चिमनी बाहर छत से निकल रही है. जब इसमें आग जलता है तो ये बहुत अच्छा है, नाइस एंड वार्म भी हो जाता है. तो यू कैन इवन सिट ओवर हियर. इट्स वंडरफुल टू सिट ओवर हियर, वेरी कंफर्टेबल. सो या ब्यूटिफुल earthen flooring and very how do I put it, one, it begs to be touched. It's warm and cozy and toasty and very cool in the summers and वेरी रेसिस्टेंट. तो इस पे आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, इसके आप हल्का सा पोछा भी लगा सकते हैं और ये आपको कई सदियां चलने वाली हैं. कि हमें लगता है कि अर्दन फ्लोरिंग का मतलब है सिर्फ लिपाई, और फिर हमें लगता है कि अरे इसमें तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगेगा. नहीं लगता. जैसे जो अर्दन फ्लोरिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इस फ्लोर को 2 साल हो चुके हैं, आज तक हमें कुछ नहीं करना पड़ा. और हमारे यहाँ हर चीज बहुत रफली यूज होती है क्योंकि इतने लोग आते जाते रहते हैं, इतने स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं. एवरीथिंग इज यूज सुपर रफली. आई मीन लुक एट द फिनिश. इफ यू लिव इन अ हाउस लाइक दिस, जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, एंड स्टूडेंट्स मीन्स एनीबडी, राइट, 60 years old भी आते हैं एंड हमारे यहाँ 2 year olds भी आए हुए हैं अपनी मम्मियों के साथ डूइंग अ नेचुरल बिल्डिंग कोर्स. बट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे कमेंट ऑन इज द नेक्स्ट दे से कि इससे अच्छी नींद हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं आई. अब ये मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे साइंटिफिक टर्म्स में समझाऊं, because this is what energy is all about. The kind of sleep that you will have in these houses, you have to experience it to be able to know it. It's priceless. उसका कोई पैसा और कोई मोल नहीं लगा. And I think that's it. I think I'm ready to stop today's session. But I hope you enjoyed it. I hope this has inspired you at least a little bit to at least start thinking about it and start researching yourself. Google पे जाइए, आप थोड़ा research करना शुरू कीजिए, थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, and understand. Once again, I will stress on it that this does not in any way mean only for people who are building a new house. No matter where you live, and this does not also mean just the house. It means all the energy systems that are coming inside your house, all the waste systems that are going outside your house. It's the whole package, and including even growing your food. By the way, you saw this is a living roof. That means technically जितनी जमीन आपने इस्तेमाल की अपना घर बनाने के लिए, उतनी जमीन आपको वापस ऊपर मिल गया. और टेक्निकली अगर आपके पास खेत भी नहीं है, लिटरली आप सोचो अगर आप शहर में आप अगर एक बस 500 स्क्वायर फुट का घर बना रहे हो, आप उसके पूरे छत में अपनी सब्जियां उगा सकते हो. Living roof. How does it get more brilliant than this? Thank you everybody and bye.